हिना राशिद, जहांजेब सरवर या मोहम्मद जुबैर, ये तीनों हैं 2011 बनो समा की आवाज सेमी फाइनलिस्ट। लेकिन एक बार फिर ऑडिशंस में जब ये नजर आए तो हमने फैसला किया इनमें से किसी एक को चुनने का। लेकिन कौन होगा इनमें से फाइनल, फैसला करेंगे आपके वोट्स। SKS लिखिए अपने पसंदीदा कैंडिडेट का नाम और भेज दीजिए 8126 पर। आपके पास हैं सिर्फ 24 घंटे। मुझको हज़ल किसे का है, मदह हैदर न करूं, मुझको हज़ल किसे का है, क्यों ना हक बात करूं, मुझको खतर किसे का है, क्यों ना हक बात करूं, मुझको खतर किसे का है। राह में आले मोहम्मद के न काम आए अगर, राह में आले मोहम्मद के न काम आए अगर, मेरे कांधों पे ये रखा हुआ सर किसे का है, मेरे कांधों पे ये रखा हुआ सर किसे का है। फतह खैबर को किया कुव्वत रब्बानी से, फतह खैबर को किया कुव्वत रब्बानी से, कुव्वत रब पे तसर्रुफ ये मगर किसे का है, कुव्वत रब पे तसर्रुफ ये मगर किसे का है। हक से मतलब ना हटी, कुफ्र पर भी चलती रही, हक से मतलब ना हटी, कुफ्र पर भी चलती रही, जुल्फ़िकार ऐसा चलन और हुनर किसे का है, जुल्फ़िकार ऐसा चलन और हुनर किसे का है, मदे हैदर ना करूं, मुझको खत हज़ल किसे का है। बहुत शुक्रिया साइमा, आपका बहुत शुक्रिया। बैठें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 19 रमज़ान को हमने आपके सामने एक शो पेश किया ज़रबत के दिन पर। आज 21वीं रमज़ान है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत का दिन। 19वीं रमज़ान को मेरे एहसासात क्या थे, मेरी फीलिंग्स क्या थी, मेरे जज्बात क्या थे, मैं नहीं बता सकती। कल क्या थे वो भी नहीं बता सकती, और आज क्या है ये भी मैं आपके सामने नहीं बता सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आज हम मौला अली करमुल्लाह वजह की शहादत पे बात करेंगे। इतनी बड़ी हस्ती, मुझे कल किसी ने कॉल करके कहा कि कल भी हमें उन पे शो करना चाहिए था, लेकिन मैं कहती हूँ कि कल करते, आज करते, ऐसे 10,000 शोज़ भी करें तो हम उस हस्ती की ज़िंदगी को नहीं समझ सकते। उस दिन जब मैंने शो किया तो मुझे लगा कि वक्त ऐसे गुजर गया, अभी तो मैंने उनकी बहुत सारी बातों पे बात ही नहीं की, अभी तो मैंने उनकी सखावत पे बात नहीं की, मैंने उनकी बहादुरी पे बात नहीं की। और मैं समझती हूँ हम सारी ज़िंदगी भी शोज़ करते रहें तो उनकी ज़िंदगी को नहीं समझ सकते। एक छोटी सी कोशिश करते हैं, आज इतनी बड़ी हस्ती के बारे में जानते हैं, बात करते हैं।
مطلب جن کی پرورش ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، جن کے وہ ساتھی ہوں، جن کے وہ دوست ہوں، جن کے وہ داماد ہوں، کتنی بڑی ہستی ہوگی وہ۔ ایک چھوٹا سا پیکج ان کی شہادت پہ، واپس آ کے ان کی شہادت پہ بات کریں گے، ان کی سخاوت پہ بات کریں گے، ان کی بہادری پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا صبح سحری سما کے ساتھ۔ رمضان مبارک۔ دین کی بات کے لیے تعاون حاصل ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی۔ حضرت علی علیہ السلام پہلے آسان جنہوں نے سب سے کم عمری میں اسلام قبول کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان جیسا بہادر، ایماندار، اسلام کا چاہنے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والا کوئی نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ اللہ کے حکم سے حضرت علی کے نکاح میں دی۔ اسلام کی خاطر لڑی جانے والی تمام جنگوں میں وہ سب سے آگے رہے، اسی لیے غزوہ احد کے دوران انہیں ذوالفقار تلوار عطا کی گئی جو دشمن کو 2 برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ انہیں شیر خدا کا لقب بھی ان کی بہادری کی بدولت حاصل ہوا۔ ان کے اقوال اور کردار مسلم امہ کے لیے مثال بن گئے۔ 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں عبادت کے دوران حالت سجدہ میں ابن ملجم نے ان پر زہر بھری تلوار سے وار کیا، اور اس وقت بھی انہوں نے اپنے بیٹوں کو دشمن کو اس وقت تک معاف کرنے کا حکم دیا جب تک ان کی روح جسم میں موجود ہے۔ 21 رمضان کو حضرت علی شہید ہوئے اور تاریخ میں وہ اسلام کا سر بلند کرنے والے ستارے کی حیثیت سے آج بھی زندہ ہیں۔ جی ناظرین، اور اس وقت یہاں پہ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح امتیاز جاوید خاکفی صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم آپا۔ میرے ساتھ آڈینس بھی ہے اور میرے ساتھ ہے شادمان رضا، سید مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتی ہوں۔ اور میرے ساتھ ہیں فصیح بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا حسن ظفر نقوی صاحب، وہاں سے لائیو ہمارے ساتھ، بلکہ ہمارے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ چلیں جی، تھوڑی دیر میں وہ ریڈی ہوں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سو آپ سے پہلا سوال کہ ہمیں شہادت کے بارے میں بتائیں، مولا علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا جو بھی واقعہ ہے میں چاہوں گی کہ بریفلی آپ ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل علی لشدت عدالتہ۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ان کی عدالت میں سنجیدگی، عدالت سے مخلص ہونا اور عدل کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ عدل علی برداشت نہیں ہوا ایک بہت بڑے طبقے کو، اور مولا علی کا دیا ہوا نظام عدالت جو آج بھی اگر ہم اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ مولا ناانصافیوں کے خلاف، بے عدالتیوں کے خلاف اپنی دور حکومت میں اور نبی مکرم کے ساتھ، اور حتیٰ بعد از پیغمبر اور مولا کی حکومت کے درمیان جو 3 دور حکومت گزرے، اس میں بھی جو مولا کا کام رہا وہ عدالت کا نفاذ رہا۔ مولا اس اللہ کے دیے ہوئے کام کو جس انداز سے کرنا چاہتے تھے اس انداز کو امت نے برداشت نہیں کیا، اور ایک طبقہ ان کا مخالف قرار پایا۔ بہرحال مولا کو 47 ہجری 19 رمضان المبارک کا روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے مسجد کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے، جو ایک خارجی تھا، اس نے ایسی تلوار سے ضرب ماری جو تلوار زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، اور آپ کے سر مقدس پر، فرق اقدس پہ جب وہ تلوار لگی تو میرے مولا نے ایک سجدہ تو اس وقت کیا تھا جب نبی نے فرمایا تھا کہ جب میرے بستر پہ سو جاؤ تو میری جان بچ جائے گی۔ شب ہجرت جب نبی مکرم کے بستر پہ مولا سوئے تھے تو آپ نے سجدہ شکر کیا تھا۔ عبدالحق دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ یہ اسلام کی تاریخ میں اور شریعت محمدی میں پہلا سجدہ شکر ہے۔ اس کے بعد
अल्लाह ने हर नेमत पर हर बंदे के लिए मुस्तहब करार दे दिया कि जब भी नेमत मिले तो एक शुक्र का सजदा करो। और ये मौला अली ने सबसे पहला शुक्र का सजदा किया जब उनको अपने मरने का यकीन हो गया और नबी के बचने का यकीन हो गया। जब ये कह दिया गया कि नबी बच जाएंगे आपके सोने से, एक वो सजदा था। और दूसरा सजदा ये है कि जो शुक्र का सजदा है, जब आपके सर पर ज़रबत लगी तो आपने सजदे की कैफियत में एक जुमला अपनी ज़बान पे बेसाख्ता बिला फासला वो सजदे में थे। आपके जब सर पे तलवार लगी तो आपने बिला फासला अपनी ज़बान पर एक जुमला कहा, फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली आज कामयाब हो गया। वो इन दो सजदों के दरमियान का जो दौरानिया है उसको देखने का मौजू है कि वो सजदा शुक्र जो शब हिजरत किया और ये सजदा शुक्र जो शहादत के और ज़रबत के मौके पे किया, इसके दरमियान अल्लाह की खातिर कैसी ज़िंदगी गुजरी होगी, वो काबिल दीद है अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगी। मेरे मौला को 19 को सुबह 19 रमज़ान को ज़रब मारी गई, 3 दिन आप उस ज़ख्म में रहे। और आज का दिन जो हम लेकर शुरू हो रहे हैं, जी वक्त भी यही था, यानी फजर का वक्त था, जिस वक्त में आपको नमाज फजर थी। और आपने फिर अपने फ़र्जंद इमाम हसन से फरमाया, बेटा नमाज मुकम्मल करवाओ। और आप क्योंकि ज़ख्मी हो चुके थे तो आप एक तरफ बैठे और आपने बैठ के नमाज को मुकम्मल किया। मगर इस दौरान में इतना खून निकल चुका था कि मौला से चला भी नहीं जा रहा था। आपको उठाकर घर तक लेके गए। और फिर ये जो दिन आज का दिन शुरू हो रहा है, जो क़यामत का दिन है अहले बैत पैगम्बर के लिए, इस दिन मौला की शहादत होती है, क्योंकि 3 दिन तक उस ज़ख्म की कैफियत में रहे। और इन 3 दिनों में अली ने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ पेश किया है। मैं चाहूँगा कि आज या किसी और मौके पर आप ये मौजू करार दें कि मौला अली की वसीयत क्या है। अगर आप मैं चाहूँगी आज जितना भी हम जान सकते हैं हम जाने। यकीनन टाइम भी है। मुझे वो 3 दिन भी बताएं, उस दिन भी ये बात या ये सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल सका, टाइम कम था। वो 3 दिन कैसे गुजारे, उन 3 दिनों में वो क्या बातें करते थे, वो 3 दिन कैसे गुजरे थे, मुझे थोड़ा सा अगर आप बता सकें। इन 3 दिनों में 2 काम रहे मौला के। एक तो मौला अली से, मैं बार बार मौला अली कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से कोई सवाल की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नबी ने उन्हें मौला का उन्वान करार दिया कि मैं जिसका मौला हूँ उसका अली मौला है। लिहाजा ये लफ्ज़ सुन्नी शिया सब के यहाँ मुत्तफ़िक़ है और तमाम किताबों में लफ्ज़ मौला हज़रत अली के साथ जुड़ा हुआ है। मौला अली इन 3 दिनों में 2 काम हज़रत के बहुत रहे। एक तो असहाब पैगम्बर से मुलाकात, जो ख़ुद मौला के भी साथी थे और आपसे लोग मिलने आते थे और आपसे नसीहतें तलब करते थे, आपसे सवालात करते थे, इसलिए कि मौला ने एक दावा किया था और उस दावे पर अली के अलावा कोई पूरा नहीं उतरा बादस पैगम्बर। और वो ये कि सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। बाज़ तर्जुमा करते हैं मुझसे पूछ लो इससे पहले कि मैं मर जाऊँ। मैं इसका तर्जुमा करता हूँ, तफ़क़िदूनी का तर्जुमा ये नहीं है कि अली मर जाए, बल्कि कहीं ऐसा ना हो तुम मर जाओ। अली नहीं मरेंगे, आज अली ज़िंदा है। बेशक अली इब्न अबी तालिब मरने वाले नहीं हैं। आज नहजुल बलागा की सूरत में, आज उनकी मोहब्बत की सूरत में मौला आज भी ज़िंदा है। हज़रत फरमाए इससे पहले कि मैं फ़ाक़िद हो जाऊँ या तुम मुझसे फ़ाक़िद हो जाओ, मुझसे पूछ लो। तो इन 3 दिनों में असहाब पैगम्बर ने बहुत सी बातें मौला कायनात से सवाल किए, बहुत से सवालात पूछे, बहुत सारी बातें पूछी। हत्ता बाज़ अहादीस जो मौला की बहुत मारूफ़ हैं, उन अहादीस का भी है कि आपके इन 3 दिनों में से हैं। और अगर आप कहें तो एक बहुत मशहूर जो मौला का एक फरमान है, अगर मैं यहीं से शुरू करते हैं, आपके लिए हमारे पास एक कॉलर भी है शुजा, उनसे भी बात करते हैं, फिर यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुजा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शुजा। जी मैं मौलाना साहब से बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जी, ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मौलाना, मैं शुजा बात कर रहा हूँ कराची से। सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासिबत से मैं ताज़ियत पेश करता हूँ मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत पे आपको और पूरी मिल्लत इस्लामी को, और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ताज़ियत पेश करता हूँ बिल्कुल आज का। और आपने जो JDC इदारा कायम किया है, माशाल्लाह से आपने मौला अली अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए काम किया है और ये बहुत बड़ा काम किया है। आप इंसानियत की बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं और आपने जो इदारा बनाया माशाल्लाह से इससे बहुत से लोग इस्तेफादा हासिल करेंगे, जिसका जाहिर सी बात है कि सवाब आपको भी मिलेगा और जो आपके कारकुनान हैं उनको भी मिलेगा।